आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में स्वागत है। आज का दिन है बहुत विशेष दिवस है। आज श्री अद्वैताचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। जब हम पंच तत्व जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो उस समय हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद। तो इस प्रणाम मंत्र में जब हम श्री अद्वैत बोलते हैं तो वह अद्वैताचार्य जी के लिए आता है। अद्वैताचार्य जी इस कलयुग में 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे और वह महाविष्णु और सदाशिव जी का युगल रूप है कि सदाशिव जी जो जहाँ से सभी शिव जी के जितने रूप हैं उनकी उत्पत्ति होती है, उनका और महाविष्णु दोनों का युगल रूप है। जब प्रकट हुए थे तो वह उनके हृदय में असीम करुणा थी जीवों के प्रति, और इस संसार में जब उन्होंने देखा कि किस तरह से जीव पीड़ित हैं कलयुग के प्रभाव से, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से अपने हृदय से प्रार्थना करी। और अद्वैताचार्य जी के पास में एक शिला थी, शालिग्राम की शिला, वो उनकी उपासना करते थे, उनकी अर्चना करते थे। तो कृष्णा की उस रूप से प्रार्थना करी और कृष्ण भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए। और श्री अद्वैताचार्य जी के बारे में चैतन्य चरितामृतम में, चैतन्य भागवतम में भक्तों ने और बताया है, तो हमने उसका अध्ययन नहीं किया, उसके बारे में पढ़ा नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हम लोग कम से कम श्री अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस कथा को आरंभ करेंगे। तो आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 60 उसका उच्चारण करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः, while endeavoring, he certainly, api, in spite of, Kaunteya, O son of Kunti, Purushasya, of a man, Vipaschitaha, full of discriminating knowledge, Indriyani, the senses, Pramathini, agitating, Haranti, through, Rasabham, by force, Manaha, the mind. Translation: the senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them.
Can I request anyone devotee to read the translation and purport also in Hindi? Hare Krishna Prabhu. Hare I Krishna. read the translation and purport Prabhu. Yeah, read the translation and purport both, please. Translation by Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Purport. There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses. But in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fail, sometimes fall victim of the material sense enjoyment due to the agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment. Although the yogi was endeavoring the sense control with several severe types of penance and yoga practice. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot cease such material engagements. A practical example is given by Shri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, Yad avadhi mama cheta Krishna padar avinande नव नव रसा धामन्य उद्यत उद्यतम रंतुम असित तद अवधि बता नरी संगमे समर्यमने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठि वनम च. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it, and I spit at the thought. Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if hungry man has been satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious and eatables. Maharaja Ambarisa also conquered a great yogi, Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Savi mana Krishna padar vindayor vachamisi Vaikuntha Ganuno Varnane. Hare Krishna. Krishna Prabhu, you are muted. Can I request some devotees to recite the verse, please? 3 times Prabhuji's and 3 times Mataji. Hare Krishna Prabhu, will recite Prabhu. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. Hare Krishna Prabhu. Yatato hi api konteya purushasya vipaschita indriyani pramathini haranti prasabham mana. हरे कृष्ण. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपचित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. Hare Krishna.
सो हमने पिछले 5 हफ्तों में सबसे पहले कृष्ण भगवान ने जो आदेश दिए हमको कि हम अपने मन से भौतिक इच्छाओं का त्याग करें, और उसके बाद में भगवान ने जो आदेश दिया कि हम किस तरह से सुख और दुख का सामना करें, किस तरह से शुभ और अशुभ व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति इसका सामना करें। और उसके बाद में हमने चर्चा करी थी कि हम अपनी इंद्रियों के साथ किस तरह से व्यवहार करें। तो जब इंद्रियों से व्यवहार करने की बात आती है तो कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वश, कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने शरीर के खोल में हमेशा समेट के रखता है, और जब आवश्यकता होती है उसी समय अपनी इंद्रियों को अपने खोल से बाहर निकालता है। और ये कहने का तात्पर्य है कि कछुआ अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोग से दूर रखता है हमेशा, और कम से कम उसके संपर्क में लेके आता है। तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए। और इसके अगले श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि अगर हम इंद्रियों को जबरदस्ती उनके विषय भोगों से दूर रखने का प्रयास करते हैं तो उस रणनीति की क्या कमजोरी होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि when you try to restrict the senses from enjoying the sense objects, विषय means विषय के भोग। तो जब हम अपनी इंद्रियों को उनके भोगों से, हमारी आंख को जो भौतिक वस्तुओं को देखने की इच्छा है, कानों को जो भौतिक शब्दों को सुनने की इच्छा है, तो हम अपनी जो इंद्रियों को इनके भौतिक विषयों से दूर रखते हैं जबरदस्ती, तो फिर इंद्रियों को ऐसा लगता है कि हमको भूखा रखा जा रहा है। निराहारस्य देहिना, निराहार का अर्थ है कि उसको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो उन 5 इंद्रियों की अपनी अपनी भूख है। जैसे आँख की भूख है भौतिक, जो संसार में सुंदर भौतिक वस्तु है उसको देखने का। कान की भूख है कि जो संसार में जो मधुर शब्द हैं, भौतिक मधुर शब्द हैं, उनको सुनने का। जीवा की भूख है जो स्वादिष्ट पदार्थ है उसको खाने का। तो हमारी सभी इंद्रियों की अपनी अपनी भूख है। तो जब इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखा जाता है तो इंद्रियों को लगता है कि उनको भूखा रखा जा रहा है। तो इंद्रियां विषय भोगों से दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी मन में जो इंद्रियों से ऊपर है, मन के अंदर उन भोगों को भोगने की इच्छा बनी रहती है। और हमने चर्चा करी थी कि हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को 2 तरह की भूख होती है। वन इज द बायोलॉजिकल हंगर विच इज द हंगर ऑफ द बेली, कि जो हमारे पेट की भूख है, और दूसरा है इंद्रियों की भूख। और हमने आपको बताया था कि मनुष्य को पेट की भूख को शांत करना जरूरी है। वो नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे जो पेट की भूख है उसको शांत करना जरूरी है, लेकिन जो इंद्रियों की भूख है उसको शांत करना आवश्यक नहीं है। संसार में इतनी सारी अनगिनत सुंदर वस्तुएं हैं, देखने की भौतिक वस्तुएं हैं, हमारी आंखों को इच्छा होती है उनको देखने की। अगर हम नहीं देखेंगे उनको तो हमारा शरीर कमजोर नहीं होएगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारी सुनने की वस्तुएं हैं,
अगर हम सबको नहीं सुनेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन हमको खाना जरूरी है। तो हमारी जो पेट की भूख है उसको बुझाना जरूरी है, लेकिन इंद्रियों की भूख को शांत करना आवश्यक नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो हमारी इंद्रियों की भूख है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द हंगर ऑफ द बेली, कि हमारे पेट की भूख से बहुत ज्यादा वो तीव्र है ना। it comes with a force, it becomes like irresistible की में irresistible means कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता है। और हमारा मन कई बार बोलता है कि मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता, इस चीज के बिना नहीं रह सकता, इस चीज के बिना नहीं रह सकता। तो कुछ समय के बाद हमको वो सब चीजें हमारे जीवन की आवश्यकता बन जाती है। तो कृष्ण भगवान त्रुटि बताते हैं कि if we try to control our senses by negative restrictions, then rasopyasya, the taste to enjoy those sense objects will remain. So what is the solution? Krishna is giving the solution also कि भाई ये negative restriction काम नहीं करेगी। तो what we should do? रसवर्जम, कि ये जो रस है, भौतिक सुखों का जो रस है, अगर हमको इससे दूर रखने का है तो परम दृष्टवा, देन वी शुड एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट, कि हमको कोई उत्कृष्ट स्वाद है वह अपनी इंद्रियों को देना पड़ेगा। हमारी आंखों को भी, हमारी आंखों का भी रस है, कानों का भी रस है, जीवा का भी रस है, त्वचा के भी रस है। तो आंखों के रस का अर्थ है कि जब हमारी आंखें सुंदर वस्तुओं को देखती हैं, देखने के बाद उनको जो सुख मिलता है उसको आंखों का रस कहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा, कि जो हमारे मन में इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा है वह चली जाएगी। कब जाएगी? जब परम दृष्टवा, जब हम अपनी इंद्रियों को कुछ उत्कृष्ट रस का स्वाद अनुभव कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति को घास दी जाए खाने के लिए और उसको बोला जाए कि ये गन्ना है, और इसको मान ले, और व्यक्ति मान ले कि ये मेरे को गन्ना दिया गया है, कि आई हैव बीन गिवन द शुगर केन टू च्यू, तो वह व्यक्ति उसको घास को गन्ना समझ के चबाता रहेगा। और घास को चबाने से जो रस निकल रहा है, आदमी सोचेगा ये तो गन्ने का रस है। लेकिन घास के रस में और गन्ने के रस में तो बहुत अंतर है। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति उस आदमी को जाके बोले कि भाई तू क्या कर रहा है, तू तो गन्ना नहीं चबा रहा, तू तो घास चबा रहा है, और गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, घास को छोड़ दे। तो हम उसको बोलते हैं आदमी को घास खाना छोड़ दे, घास खाना छोड़ दे, घास खाना छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन जैसे ही उसको एक बार ये गन्ना मिल जाए खाने के लिए और वो गन्ने को चबा के देखे, तो उसको मालूम पड़ेगा कि गन्ने के रस में और घास के रस में क्या अंतर है। और जैसे उसने एक बार गन्ने के रस का स्वाद कर लिया, स्वतः ही उसके मन से, उसकी जीवा से घास का रस का जो स्वाद है वह अपने आप छूट जाएगा। नो एक्स्ट्रा एंडीवर इज रिक्वायर्ड टू गिव अप द इंफीरियर टेस्ट when we get the higher taste. रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे वैष्णव संप्रदाय में।
तो वह श्रीरंग जी की उपासना करते थे। श्रीरंगम में बहुत बड़ा मंदिर है, तो रंगनाथ जी की यात्रा निकलती है रोज शाम को। तो यात्रा के समय रंगनाथ जी के विग्रह के ऊपर भक्त लोग छाता लेके चलते हैं ना। तो एक बार ऐसे ही रंगनाथ जी की यात्रा निकल रही थी, तो रंगनाथ जी के ऊपर कुछ भक्त लोग छाता लेके चल रहे थे। रामानुजाचार्य जी भी यात्रा में थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का लड़की खड़े हुए हैं, और लड़का लड़की के ऊपर छाता लेके खड़ा हुआ है और लड़की की आंखों में देख रहा है, और आंखों को देखने में इतना मुग्ध है, इतना मग्न है कि उसको एहसास ही नहीं है कि अभी रंगनाथ जी की यात्रा निकल रही है। तो रामानुजाचार्य जी को उसके ऊपर दया आई। उन्होंने बोला कि बेटा तुम कल अगले दिन मेरे से आके मिलने का मंदिर के अंदर। तो वो लड़का रामानुजाचार्य से मिलने गया मंदिर के अंदर, और रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको आंखों का वास्तविक रस क्या होता है उसका अनुभव कराओ। तो रंगजान जी ने तुरंत ही अपना दिव्य रूप दिखाया, जो सिर्फ लड़का और लड़की देख सकते थे ना। तब जब लड़का लड़की ने भगवान जी का दिव्य रूप देखा, तो देखते ही वो बेहोश हो गए वो। और जब अपनी मूर्छा से वापस आए, तो उनके मन में इतना आनंद था कि उन्होंने रामानुजाचार्य से क्षमा याचना करी और बोला कि अभी हमें एक दूसरे को देखने को मन नहीं करता हमको, क्योंकि जिस सुंदरता का हमने अनुभव किया है, आंखों को जो रस मिला है, वो रस अभी हमें आसपास कहीं दिखता भी नहीं है। तो दिस इज परम दृष्टा। हमारा कृष्ण भावना भावित संघ, अवर इस्कॉन इज मेंट टू गिव परम दृष्टवा। शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना क्यों करी? टू गिव द पीपल परम दृष्टवा, टू गिव द पीपल हायर टेस्ट। प्रभुपाद जी जब विदेश गए, तो विदेश में जाकर उन्होंने क्या किया? ही सिंपली गेव परम दृष्टवा, ही गेव द हायर टेस्ट to the people over there. Prabhupada was not into don't, no negative restrictions. जब प्रभुपाद जी ने पहली बार कीर्तन किया टॉमसन पार्क में, तो प्रभुपाद जी ने किसी को ये नहीं बोला कि तुम नहा धो के आने का, शराब पी के नहीं आने का, जो मीट नहीं खाते वो नहीं आने का, यह कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। Prabhupada simply started chanting Hare Krishna mantra with the kartals in the two hands, right? And that is the higher taste. So since the higher taste was given to the hippies who were doing all the obnoxious things, क्योंकि प्रभुपाद ने ये परम दृष्टवा दिया, ये उत्कृष्ट रस दिया हिप्पियों को, जिनको रोज घास चूसने की, चबाने की आदत थी, तो उनके जीवन से हमेशा के लिए जो घास को चबाने का रस है वह निकल गया है। हमको कभी कभी जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि लोग आपस में बात करते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि डोंट ईट नॉन वेज। व्हेन वी से डोंट ईट नॉन वेज, or if I am telling my mind don't eat non-veg, that's a negative restriction. Nirahara. So that will not work. What will work? कि हम नॉनवेज की जगह कृष्ण भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें, तो धीरे धीरे जो मांस का स्वाद है वह अपने आप ही चला जाएगा ना। देयर इज नो एक्स्ट्रा एंडीवर रिक्वायर्ड
to give up the bad habits. Once we attach ourselves to Krishna, once we start experiencing the higher taste. So Krishna explained in verse number 59 कि अगर हम लोग अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से नकारात्मक तरीके से जबरदस्ती दूर रखते हैं तो इंद्रियां विषय भोगों से दूर रहेंगी, लेकिन मन में उन भोगों को भोगने की इच्छा बनी रहेगी। तो इसीलिए हमको अपनी इंद्रियों को उत्कृष्ट रस देने का है। और इस श्लोक में यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इस श्लोक के अंदर भगवान हमारी इस नीति की त्रुटि बताते हैं कि अगर हम इंद्रियों को उत्कृष्ट रस देने का प्रयास करें तो भी क्या गड़बड़ हो सकती है ना। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि। भगवान इंद्रियों का स्वभाव बताते हैं कि हमारी इंद्रियों का स्वभाव क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों का स्वभाव है कि वो प्रबल हैं और वेगमान है। प्रबल का अर्थ है बहुत शक्तिशाली। और जब हम इंद्रियों की बात करते हैं तो विशेष रूप से हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां उसको याद रखना चाहिए। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, our eyes, ears, nose, tongue and the touch of the skin. तो हमारी इंद्रियां हमेशा बलवान रहती हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई। अगर मैंने आंखों में चश्मा पहन रखा है तो लोग कहेंगे कि मेरी आंखें कमजोर हैं। ठीक है, बाह्य दृष्टि से मेरी आंखें कमजोर हैं। आंखें कमजोर हैं किस दृष्टि से कि मेरी आंखों के अंदर जो आंखों को भोगने की शक्ति है, आंखों की भोगने की शक्ति कम हो गई। The capacity to enjoy the sense objects has weakened. तो इसलिए मेरे को चश्मा पहनना पड़ता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो मेरी आंखें उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, और उतनी ही शक्तिशाली रहेंगी आगे आने वाले समय में अगर हमने परम दृष्टवा का स्वाद नहीं लिया था। जब हम कहते हैं कि हमारी इंद्रियां प्रबल हैं, बलवान हैं, तो इसका कहने का तात्पर्य कि हमारी इंद्रियों के अंदर जो भोगने की इच्छा है, जो तुच्छ भोगों का स्वाद है, वह हमेशा बना रहता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रबल है। एंड वेगमान कि वो शक्तिशाली भी हैं और बहुत उनके अंदर वेग भी है। जैसे समुद्र के अंदर वेग होता है और एक लहर ही काफी है पूरे शहर को डुबाने के लिए, राइट? तो इसी तरह से हमारी इंद्रियों का वेग भी है ना। जब कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि, तो ये इंद्रियों का स्वभाव है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और इतनी वेगमान हैं कि हरंती प्रसभम मन है। कि हरंती का अर्थ है बलपूर्वक है, मन को हर लेती हैं। किसके मन को हर लेती है? कि पुरुष के मन को हर लेती है। और पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, विपश्चिता। विपश्चिता का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान हो, द पर्सन हु कैन डिस्क्रिमिनेट, द पर्सन हु इज विटफुल, राइट, द मैन ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति के मन को भी हर लेती। एंड यततो मीन्स की एंडीवर,
कि जो विपश्चिता पुरुष है, द मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, even if he endeavors to control the senses, then also the person has to be careful that the senses are so powerful and so forceful that it can carry away the mind of such a person. And in this context, Srila Prabhupada gives the example of Vishwamitra Muni. तो विश्वामित्र मुनि वो बहुत बड़े राजा थे. ही वॉज ए राजर्षि, सेंटली किंग. उनका नाम कौशल राजा था. तो एक बार शिकार करते करते अपनी सेना के साथ जंगल में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर वशिष्ठ मुनि ने राजा का और उनकी सभी सेना का स्वागत किया और उनको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन परोसा. तो कौशल राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मन में जिज्ञासा हुई कि ये ऋषि तो जंगल में रहते हैं और कुछ ही शिष्य इनके पास में, इन्होंने थोड़े से समय में इतने सारे लोगों के लिए स्वादिष्ट ये जो फीस्ट है भोजन को कैसे बनाया. तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा. तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि महाराज, मेरे पास कामधेनु गाय है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जो इच्छा होती है स्वयं ही प्रकट हो जाता है. तो राजा ने बोला कि ये गाय मुझे दे दो. तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि नहीं, ये गाय मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे गाय से भगवान के यज्ञ के लिए जो दूध दही घी की आवश्यकता होती है वह मिलता है, तो इसलिए गाय नहीं दे सकता. तो राजा को बहुत क्रोध आया कि मेरी प्रजा का व्यक्ति है, वो मेरे को गाय नहीं दे रहा. तो उसने उसके ऊपर आक्रमण किया. लेकिन वशिष्ठ मुनि के तप का इतना बल था कि वो अपने तप के बल से उन्होंने अपने तप के बल से कौशल राजा को हरा दिया है. और वशिष्ठ मुनि के शिष्य कौशल राजा को विश्वामित्र थे, उनको बंदी बना के वशिष्ठ मुनि के सामने लिया है. तो खैर वशिष्ठ मुनि तो एक महर्षि थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया. लेकिन उस समय कौशल राजा को एहसास हुआ कि जो शारीरिक बल से, राजसी बल से बड़ा बल तपस्या का बल है. तो उस समय उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी इंद्रियों को वश में कर मन को भगवान में लगाने का प्रयास करना शुरू किया, इस उद्देश्य से कि मुझे वशिष्ठ मुनि से भी ज्यादा शक्तिशाली तपस्वी बनने का है, उससे भी ज्यादा बल चाहिए. और जब इंद्र देवता ने देखा कि अभी तो ये राजर्षि से महर्षि इतने बड़े ऋषि बनने वाले हैं कि ये स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, तो उनको अपने राज्य की चिंता हुई. और उन्होंने तुरंत ही जो सबसे सुंदर अप्सरा थी मेनका को बुलाया, और मेनका ने जाकर वहां पर थोड़ा सा नृत्य किया. और उस नृत्य का, उस शब्द का प्रभाव था कि विश्वामित्र मुनि, ना प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर विश्वामित्र मुनि का क्यों उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विपश्चिता. ही कुड डिस्क्रिमिनेट what is right, what is wrong. He could see the power of austerity. और उन्होंने अपने डिस्क्रिमिनेशन को यूज किया, और उसको यूज करते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे तो अभी तपस्या करनी है, तपस्या को करते रहे. एंड ही कंटिन्यू टू रिमेन अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर 60,000 years. लेकिन 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी उस तपस्या का फल काम नहीं आया उनको. क्यों?
क्योंकि he was trying to control his senses by negative means. उनके मन में भौतिक शब्द को सुनने की कहीं न कहीं तीव्र इच्छा थी, और चूंकि उनके मन में भौतिक शब्द को सुनने की इच्छा थी, इसी कारण से जैसे ही मेनका ने नृत्य शुरू किया, पायल की आवाज आई, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि ये इतना सुंदर शब्द कहां से आ रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन उसके विपरीत हमने आपको उदाहरण दिया था हरदास ठाकुर जी का। उन्होंने भी तपस्या करना शुरू किया, लेकिन नॉट बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ही वुड बी चैंटिंग एवरी डे। वह बोल बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते थे। तो जब हरे कृष्णा बोलते थे तो कानों में परम दृष्टवा, द हायर टेस्ट वाज गोइंग ऑन। तो हायर टेस्ट इतना भर गया था उनके कानों में कि जब वैश्या ने आके उनको जो भी बोला, जो भी प्रस्ताव दिया, वॉट एवर प्रपोजल वॉज गिवन बाय द प्रोस्टिट्यूट डिड नॉट एंटर इनटू हिज ईयर्स। और परम दृष्टवा उनके कानों में इतना गया था कि वह परम दृष्टवा वो वैश्या को भी दे सके। उन्होंने वैश्या को भी भगवान का भक्त बना लिया। सो इन दिस वर्स कृष्ण भगवान बता रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी इंद्रियों का स्वभाव क्या है। इंद्रियों का स्वभाव है प्रमाथिनी। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान इंद्रियों को प्रमाथिनी बोलते हैं। और प्रमाथिनी स्वभाव किस जीव का होता है? हाथी का होता है। हाथी इज वेरी मच इंटॉक्सिकेटेड बाय हिज पावर। हाथी जब भी चलता है, कभी हम देखें तो जिस तरह से हाथी चलता है, वो लगता है कि उसके मन में हमेशा प्रमाद है, उसके मन में घमंड है, अहंकार है, ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड विद हिज पावर। तो इसी तरह से हमारी इंद्रियों की भी शक्ति है। जिस तरह से हाथी के अंदर शक्ति है ना कि गन्ने की जो भी कोई फसल हो उसको बहुत ही सहजता से उखाड़ सकता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियों के अंदर भी शक्ति है कि हमने जो अपने विवेक के द्वारा निर्णय लिया है कि थ्रू अवर डिस्क्रिमिनेशन, वॉट एवर डिटर्मिनेशन वी हैव मेड, द डिटर्मिनेशन विल फेल if we are not connected with Krishna. आदि शंकराचार्य जी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था विवेक चूड़ामणि। विवेक का अर्थ है डिस्क्रिमिनेशन और द इंटेलिजेंस, एंड चूड़ामणि मीन्स द ज्वेल्स। So our acharyas quote the verse which is quoted by Adi Shankaracharya when it comes to demonstrate the power of our five senses. And Shankaracharya ji says that Shabdadibhi panchabhireva panchatvamapu swagunena baddha कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नर पंच विरंजित किम। शब्दादि भी, sorry, गिरवरधारी प्रभु, can you display the verse please? So इस श्लोक के अंदर शंकराचार्य जी बताते हैं कि 5 जीव हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से शंकराचार्य जी ने 5 जीवों का उदाहरण लिया। और 5 जीव कौन से हैं? कुरंग,
मातंग पतंग मीनः भृंग। और वह बताते हैं कि किस तरह से ये पांचों जीव विषय भोगों की प्रबल इच्छा के कारण मृत्यु का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले वह उदाहरण देते हैं कुरंग। कुरंग को हिंदी में डियर बोलते हैं, हिरण। तो कुरंग मीन्स हिरण, द डियर। तो जो हिरण है उसका जो सबसे द कमजोर इंद्रिय है, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ डियर इज द साउंड। तो जब शिकारी को हिरण को पकड़ना होता है, उस हिरण का शिकार करना होता है, तो शिकारी बहुत ही सुंदर शब्द की ध्वनि करता है जो हिरण को प्रिय होती है। और हिरण वो सुंदर ध्वनि को सुनते हुए वो शिकारी के पास पहुंचता है, और वहां पर शिकार ने अपना जाल बिछा के रखा होता है, और हिरण उसके जाल में फंस जाता है, या जब हिरण शिकारी के नजदीक आता है तो शिकारी उसके ऊपर तीर चला देता है। तो हिरण की मृत्यु कैसे होती है? हिरण की मृत्यु होती है उसका जो उसके जो कान हैं वह सुंदर शब्द, मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। सो दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ हिरण। हिरण की मृत्यु और किसी कारण से नहीं हो सकती। हिरण को अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे घास देकर, घास डालकर, तो हिरण आकर्षित नहीं होगा, राइट? कोई व्यक्ति उसके सामने बहुत सुंदर स्त्री को रखे, हिरणी को रखे, तो भी हिरण आकर्षित नहीं होगा। हिरण सिर्फ एक ही चीज से आकर्षित होता है, वह मधुर ध्वनि से। दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ अ डियर। द सेकंड एग्जांपल आदि शंकराचार्य गिव्स इज मातंगा। मातंगा मीन्स एलिफेंट। तो जो हाथी का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है वह क्या है? द सेंस ऑफ टच। वह अपनी त्वचा को त्वचा को सुख देना चाहता है। तो जब शिकारी को हिरण को मारना होता है तो वे जंगल में एक बहुत बड़ी खाई बनाते हैं, खाई को घास से कवर करते हैं, और खाई के दूसरी तरफ एक शी एलिफेंट, हथनी को खड़ा कर देते हैं। और हथनी इज ट्रेन्ड टू एंटाइज द मेल एलिफेंट। तो वह जो शी एलिफेंट है वो मेल एलिफेंट को रिझाने का प्रयास करती है, और मेल एलिफेंट वह शी एलिफेंट की तरफ आकर्षित होता है, और उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे शी एलिफेंट का स्पर्श करना चाहिए। तो उसके मन में उसकी स्पर्श करने की जो इच्छा है शी एलिफेंट को, उस कारण से वह अपना पैर आगे बढ़ाता है और वह खाई के अंदर गिर जाता है। तो हाथी का जो वीकेस्ट पॉइंट है वह है द डिजायर टू टच द अपोजिट सेक्स। स्पर्श, वह सुख उसके लिए वह सबसे ज्यादा उसकी कमजोरी है। हाथी की मृत्यु और किसी चीज से नहीं होती। नहीं, हाथी को अगर हम बहुत सारा खाने के लिए दें तो खा लेगा, उससे मरेगा नहीं वो, है ना। उसके सामने हथनी को खड़ा किया जाए, हाँ, तो भी वह उसको सिर्फ देखने मात्र से नहीं मरेगा। वो मरता कब है? जब वो हथनी को छूना चाहता है। So that's the weakest point of elephant. And then third example Shankaracharya ji gives is the patanga. पतंगा, मोत। तो पतंगा की मृत्यु क्यों होती है? कि क्योंकि वह सुंदर रूप है, वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो पतंगा को हमेशा जो लाइट है,
जैसे आग जलती है तो उसकी जो आग से जो प्रकाश निकलता है उसकी तरफ आकर्षित है। कभी कभी बहुत तेज लाइट चलती है रात में तो उसकी तरफ भी पतंगे आकर्षित होते हैं। तो कभी कभी हम सुबह उठ के देखते हैं तो देखते हैं कि लाइट के नीचे बहुत सारे पतंगे मरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह लाइट की तरफ आकर्षित होता है और जैसे ही लाइट की तरफ आकर्षित होता है जाके उसको हिट करता है और ये आग चल रही होती है तो आग के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उससे पतंगे की मृत्यु होती है। और फिर चौथा एग्जाम्पल देते हैं कि मीनः कि फिश, कि जो मछली की मृत्यु कैसे होती है कि जो फिशरमैन है वो नेट के आगे वो शिकार उसके अंदर खाने के लिए कुछ लगाता है वो, तो मछली उसको पकड़ने के प्रयास में जंप करती है और जैसे ही जंप करती है वैसे ही शिकारी उसको अपने पाश में बांध लेता है। तो इस तरह से मछली की मृत्यु होती है। और अंत में भृंगा मीन्स हनी बी, मधुमक्खी को क्या अच्छा लगता है? ये भौरे को, इट्स नॉट एग्जैक्टली हनी बी, इट्स अ भौरा को फूल की खुशबू अच्छी लगती है। तो जब वो कमल के फूल में जाता है या किसी भी सुंदर फूल के ऊपर बैठता है तो उसके सूंघने में इतना मग्न हो जाता है कि कुछ समय बाद फूल अपने आप को बंद कर लेता है और जब फूल अपने आप को बंद करता है तो भंवरा उसी के अंदर बंद होकर मर जाता है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी इस 84 लाख योनियों में से 5 जीवों का उदाहरण देते हैं हमें। उसमें से 2 जीव तो पशु हैं, कि हिरण भी पशु है और हाथी भी पशु है, लेकिन दोनों के अंदर बहुत अंतर है। इट्स अ बिग कंट्रास्ट। अगर हम हिरण की शक्ति देखें और हाथी की शक्ति देखें, दोनों की शक्ति में बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं ना कि डजेंट मैटर, इट्स नॉट अबाउट द बॉडीली स्ट्रेंथ, कि ऐसा नहीं कि हाथी के अंदर शारीरिक बल बहुत ज्यादा है तो इस कारण से वह अपनी जो इंद्रियों का वेग है, जो उसके मन का वेग है, उसको रोक सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक हिरण की भी मृत्यु होती है और हाथी की भी मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ देयर वीकेस्ट पॉइंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पशुओं में से हिरण का उदाहरण देते हैं और हाथी का उदाहरण देते हैं। और जो जलचर हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उसमें से फिश का उदाहरण देते हैं, छोटी सी मछली का उदाहरण देते हैं। और जो उड़ने वाले जीव हैं उसमें से पतंग का और भौरे का, उसका उदाहरण देते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्द आदि भी, कि शब्द आदि भी, कि शब्द का अर्थ है साउंड और आदि भी मीन्स एटसेट्रा, कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श है। पंच भीरेव पंचत्वम वपु में शरीर स्वगुणेन बद्धः, कि अपने अपने गुणों के कारण ये सारे जीव, जो 5 जीव उदाहरण दिए, वह बंध जाते हैं। और कौन से 5 जीव हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं। और फिर अंत में क्या बोलते हैं? नरः पंच भी रंचितः किम, और कहते हैं नरः, फिर अंत में आदमी की बात करते हैं ना, कि ये 5 जीव, और ये इन 5 जीवों के अंदर सिर्फ एक ही इंद्रिय है जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मनुष्य तो ऐसा जीव है
कि जिसकी पांचों ही इंद्रियां बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पंच भी रंचित, कि उसकी पांचों की पांचों इंद्रियां उसको रंज करती है। तो कहते हैं कि व्हाट अबाउट ए पर्सन हु हैज 5 पावरफुल सेंस ऑर्गन्स, कि ऐसे आदमी के बारे में क्या बात करूं कि जिसकी पांचों की पांचों ही इंद्रियां बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसके संदर्भ में आपको याद है कि हमने एक बार आपको आई थिंक द 5 weeks बैक वी मेंशन्ड द वर्स ऑफ 5.1.17 फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम। उसके अंदर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि प्रियव्रत महाराज तो एक राजा थे, उनके पास पत्नी भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति कैसे हो गई? तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़कर वन में जाने का, क्योंकि अगर हमारे मन से विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्तेन रसवर्जम रसोप्यस्य, कि अगर हमारे मन से विषय को भोगने का रस नहीं गया, तो इसका अर्थ यह है कि हम जहां जहां जाएंगे, अगर हम जंगल में भी जाएंगे तो वहां पर भी हमारे साथ हमारी 6 पत्नियां रहेंगी। हमारा मन रहेगा, हमारी आंख रहेगी, हमारे कान रहेंगे, हमारी जीवा रहेगी, नाक रहेगी, त्वचा रहेगी, और हमारी हरेक इंद्रियां बहुत कमजोर है। हमारी हरेक इंद्रियों के पास अनगिनत विषय भोग हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं, और हमारी कोई भी एक इंद्रिय हमारे पतन का कारण बन सकती है। हरेक इंद्रिय हमको अलग अलग दिशा में हमारी अलग अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करती है, अलग अलग दिशाओं में खींच रही है। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ में प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, तो मैं उसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा मैं, टू अंडरस्टैंड कि हाउ ईच ऑफ आवर सेंसेस इज ट्राइंग टू पुल अस इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, दिस वर्स इज 7.9.40 yes, yeah, 7.9.40। सो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बोलते हैं कि ओ माय लॉर्ड, ओ इनफॉलिबल वन, माय पोजीशन इज लाइक दैट ऑफ ए पर्सन हु हैज मेनी वाइफ्स, all trying to attract him in their own way. For example, the tongue is attracted to palatable dishes, the genitals to sex with an attractive woman, and the sense of touch to contact with soft things. The belly, although filled, still wants to eat more, and the ear, not attempting to hear about you, is generally attracted to cinema songs. The sense of smell is attracted to yet another side. The restless eyes are attracted to scenes of sense gratification, and the active senses are attracted elsewhere. In this way, I am certainly embarrassed. सो इस श्लोक के अंदर जब जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मेरी स्थिति, नहीं, माँ मीन्स मी, कि मेरी स्थिति ऐसी है, तो इसमें प्रहलाद महाराज अपने बारे में नहीं बता रहे हुए। प्रहलाद महाराज का विनम्र भाव है कि वह अपना उदाहरण दे रहे हैं, और अपना उदाहरण देते हुए बता रहे हैं
कि संसार में हम जैसे जो मनुष्य हैं उनकी स्थिति क्या है। और विश्वामित्र मृत्यु से एक उदाहरण है, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट, even a small incident can cause the fall down of a man of even a great discrimination. सौभरी मुनि वो भी बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन एक बार उन्होंने जल में स्नान कर रहे थे और उन्होंने एक मछली को संग करते हुए देख लिया। तो सिर्फ एक दृश्य देखा, वह भी पानी में, और कुछ क्षण के लिए, नॉट कुछ क्षण, एक क्षण के लिए। और उनके मन में भोग भोगने की इच्छा इतनी प्रबल हुई कि उन्होंने 50 लड़कियों से विवाह किया है ना, और उनके साथ संग किया कई सालों तक। And he fell down. So this is the power of our senses. कृष्ण भगवान इस श्लोक के अंदर दो चीजें बोलते हैं, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिति, कि जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं तो हम अपना प्रयास, वी कैन एंडीवर, वी कैन बी वेरी विलफुल, हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा हो सकती है, वी कैन बी ए मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, कि हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में कहते हैं कि विपश्चिता, कि along with the willpower we may have the wit means the intelligence or wisdom, कि अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है और बहुत ज्यादा बुद्धि भी है, still we can get carried away by the forces of our senses. That's the warning Krishna is giving. Or Krishna is telling us that we should not trust the power of our will and the power of our wisdom. कभी कभी अपनी इंद्रियों को वश में करने की बात आती है तो हम लोगों के मुख से सुनते हैं, many times people they say that I have a very strong willpower or I am very intelligent. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान हम सबके साथ साथ ऐसे जो लोग हैं who have the pride, जिनके अंदर घमंड है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, मेरी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ है और ये मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ज्ञान है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, इसको समझ सकूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं यू कैन नॉट ट्रस्ट एंड स्टिल यू कैन गेट कैरिड अवे बाय द फोर्सेस ऑफ योर सेंसेस। और इसको अगर हम और समझना चाहें तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक सैनिक है, एक सोल्जर है, वो लड़ने के लिए मैदान में जाता है और वह सोचे कि मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा शक्ति है कि मैं युद्ध को जरूर जीत के आऊंगा मैं, एंड उसके अंदर विवेक भी है, विपश्चिता भी है, उसके अंदर बुद्धि भी है कि युद्ध किस तरह से लड़ा जाए। और ये दो चीजों के साथ अगर युद्ध के मैदान में जाए तो वह क्या युद्ध लड़ पाएगा? वो नहीं लड़ पाएगा वो, बिकॉज along with our will and wit we need the weapon also to fight any battle. किसी भी सैनिक को युद्ध लड़ने के लिए विल और विट और विल एंड विजडम, इसके साथ साथ वेपन की भी जरूरत पड़ती है। So Krishna has mentioned
about one weapon which is giving the highest to our higher taste to our senses. लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को उत्कृष्ट रस देने का प्रयास करते हैं तो उस समय भी हमारा पतन हो सकता है। उस समय भी हम लोग भक्ति के मार्ग से च्युत हो सकते हैं। तो उससे बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है वह कृष्ण भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वेपन टू कीप what is the best weapon not just to keep our senses controlled but also to give up the desire to enjoy the sense objects. तो वह हथियार क्या है, उस हथियार के बारे में हम लोग अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे और तब तक के लिए अभी कथा को विराम देना चाहूँगा। और अभी भक्तों को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, दे आर वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। वो आपने बोला कि हमारी 5 नॉलेज इंक्वायरी सेंसेस हैं, ठीक है। या अगर जब कोई व्यक्ति अगर कहते हैं कि जंगल, आपने बोला कि जंगल में भी चला जाए मगर उसकी 6 पत्नियां साथ नहीं, 6 पत्नियां में 5 इंद्रियां हो तो 6 पत्नियां, सिक्स्थ इज द माइंड प्रभु, सिक्स्थ इज द माइंड। ओके ओके। तो आप श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 5.1.17। ये श्लोक महाराज को बहुत प्रिय था और प्रिय महाराज का बहुत सुंदर प्रसंग है इसके अंदर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न है, संदेह नहीं हो तो कुछ भक्त लोग जो क्लास में सुना है उसमें से जो चीज उनको अच्छी लगी और एनी टेक अवे दे वांट टू शेयर, दे आर वेलकम। कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने 5 जीवों के बारे में बताया जिनकी अपनी एक वीकनेस है, जैसे हिरण की वीकनेस है साउंड, हाथी की वीकनेस है सेंस ऑफ टच, पतंगा उसकी वीकनेस है हमेशा आकर्षण, और भंवरा साइट, साइट साइट रूप, भंवरे हाँ स्वरूप, भंवरे की वीकनेस है खुशबू, मछली की गंध, वीकनेस है गंध, मछली की वीकनेस है जीवा। तो ये सब 5 जैसे आपने बताया कि ये 5 जो जीव है उनकी वीकनेस जो एक सेंस है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसकी तो 5 इंद्रियां हैं, 5 की 5 वीकनेस है, सभी की तरफ अट्रैक्ट होता है और इतनी स्ट्रांग है कि आपने एक बार बोला कि हम लोग, जैसे एक श्लोक में हमने बात की थी कि हम समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं मगर जो हमारे जो मन में जो इच्छाएं हैं, जो हमारे जो उनको गिनना बहुत मुश्किल है। दे आर सो स्ट्रांग, आवर सेंसेस आर सो स्ट्रांग। सो ये 5 उनकी जैसे उनकी जो मृत्यु होती है जो बिकॉज ऑफ weakness of only one sense, but all the 5 senses are so weak that we get carried away. They come with the so urge and so strong that they want them to get satisfied at the earliest, and we get carried away. So जो भी आज बात की जैसे कि अगर एक मैन ऑफ डिटर्मिनेशन है, जैसे विश्वामित्र की बात की आपने, even if a man of determination gets carried away because discrimination, discrimination and man of determination gets carried away, even if he has given up and he like आपने बताया कि 60,000 years he was in meditation, even that didn't help because he was unable to control the senses of hearing, so he was get carried away. So the only way, like we were talking about, is how to control the senses is
even if it is very difficult, actually, even if how to control it is by getting into consciousness and we can try to control them. Yeah, Prabhu, we are missing the point again. Krishna is not saying that we have to control the senses, right? Krishna is saying that give a higher taste to the senses. Yes. Right? Yes. That's the point. Yes, Prabhu. और हमने आपको कुछ समय पहले भी बताया था कि कंट्रोलिंग द सेंसेस मीन्स एंगेजिंग द सेंसेस इन कृष्णा सर्विस, राइट प्रभु? Yes, Prabhu. तो जिन लोगों का पतन हुआ तो उनका पतन इसलिए हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया था। उन्होंने योग विधि के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया, राइट प्रभु? इसलिए उनका पतन हुआ। Yes. हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। गिरवरधारी प्रभु, we can make the announcements if other devotees don't have any comments. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yeah, you can start with Prabhu for the 22nd. Yeah, Prabhu, there's 22nd February, अभी 22 फरवरी को सोमवार को हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस है। महाराज जी ने इस दिन को इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश किया था। तो हम लोग उस दिन उस महाराज के तिरुभाव का उत्सव मनाएंगे शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन। तो तिरुभाव के उत्सव में हम सबसे पहले महाराज की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, फिर महाराज जी के मुख से कृष्णा का संदेश सुनेंगे और कुछ भक्त लोग महाराज जी के बारे में बोलेंगे और उसके बाद में भगवान महाराज जी को कृष्ण भगवान का जो उत्तर 56 भोग है उस प्रसाद को अर्पण किया जाएगा और अंत में कीर्तन होएगा। तो इस तरह से मंडे शाम को ऑनलाइन प्रोग्राम होएगा। गिरवरधारी प्रभु लिंक भेजेंगे और इसके बाद में अगले दिन एकादशी है, ट्यूसडे को एकादशी है और वेडनेसडे को वराह द्वादशी है। उस दिन वराह भगवान का प्राकट्य दिवस है और उसके अगले दिन थर्सडे को नित्यानंद त्रयोदशी है और नित्यानंद त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस भी है। तो हम वराह द्वादशी और नित्यानंद त्रयोदशी इन दोनों का सेलिब्रेशन हम थर्सडे शाम को करेंगे और उस दिन भी प्रोग्राम होएगा शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक और गिरवरधारी प्रभु आपको उसका लिंक भेजेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो मंडे को प्रोग्राम होएगा महाराज का तिरुभाव दिवस है और थर्सडे को जो प्रोग्राम है जिसके दिन हम वरा भगवान के प्राकट्य दिवस और नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य दिवस का उत्सव मनाएंगे, तो प्रोग्राम में शामिल होइए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल प्रभु जी से माता जी सभी लोग सोमवार को शाम को 7:30 बजे सब लोग प्रोग्राम पे जुड़ने की कोशिश करिए ताकि महाराज की मुखवाणी से लेक्चर सुन सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्ण प्रभु। एनी अदर अनाउंसमेंट प्रभु फॉर द बर्थडेज? No, Prabhu, there are no birthdays. Hare Krishna Prabhuji. Girivardhar Prabhuji, please announce that tomorrow Mangalarti starts at 5:30, no? Those Yes, who are attending. Yeah, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Yeah, tomorrow we'll have मंगलारती। कल से हम लोग मंगलारती शुरू करेंगे ऑनलाइन में 5:30 बजे से शुरू होएगा। नहीं प्रभु, हम लोग मंगलारती जल्दी शुरू करेंगे। अच्छा। हेलो। हाँ प्रभु। हेलो। हाँ बोले हरे प्रभु। कृष्णा। बोले प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। यू आर सेइंग वी लॉस्ट योर वॉइस प्रभु, आपने जो बोला सुनाई नहीं दिया।
हाँ नहीं प्रभु, हम लोग तो एक्चुअली वही स्टैंडर्ड टाइम ही रखा है प्रभु, 5:30 ही रखा है, उसके पहले तो नहीं रखा है प्रभु। हाँ नहीं, मैंने क्या बोला कि प्रभु हम लोग मंगला आरती शुरू नहीं करेंगे, मंगला आरती का टाइम थोड़ा हमने पहले कर दिया। अच्छा पहले हम लोग अभी, राइट प्रभु, क्योंकि तो हर हफ्ते कर रहे हैं हम लोग मंगला आरती, ठीक है प्रभु। या तो उस समय सिर्फ भागवत की क्लास हो रही थी, अभी हम लोग मंगला आरती 5:30 बजे करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना मालूम नहीं कि अभी जो रेस्ट्रिक्शन है फेस टू फेस जो हमारा सत्संग होता है वो कब तक चलेगा रेस्ट्रिक्शन। तो अभी 5:30 बजे मंगला आरती करेंगे, उस समय एक भक्त के घर में वो भक्त मंगला आरती करेंगे, फिर उसके साथ में दूसरे भक्त उसको मंगला आरती बोलेंगे। तो इस तरह से जैसे हम घरों में करते थे ऐसे ही अभी ऑनलाइन भी करेंगे, और उसके बाद में भागवतम क्लास होगी। और कल हमारे विशेष अतिथि हैं हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु, वो बहुत सुंदर कथा करते हैं, और वो भक्ति शास्त्री और अपने और दूसरे बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं। इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, नॉट ओनली नॉलेजेबल, ही इज ए ग्रेट डिवोटी ऑल्सो। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी कल मंगला आरती में शामिल होइए और लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जय शिला गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 हरि।